Good morning, student. In our last class, we completed up to the exercise 2.4, and today we start next exercise, that is exercise 2.5. In this exercise, simple linear equations are given. We just find out their solution. That means value of the variable. The first one is x upon 2 minus 1 upon 5 equal x upon 3 plus 1 upon 4. Same thing we will do. जो अपन करते आ रहे थे वही चीज यहाँ पे करेंगे. एक साइड वेरिएबल वाली वैल्यू, एक साइड कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज x अपॉन 2. यहाँ पे आया LHS साइड तो माइनस का होगा पॉजिटिव और यहाँ 1 अपॉन 4 जी यहाँ पे क्या होगा, किसका होगा पॉजिटिव 1 अपॉन 5. आफ्टर दिस बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी नीड टू टेक LCM because denominator are different. So the LCM of 2 and 3 is 6. That means 3x upon 6. We multiply numerator and denominator of this by 3 and numerator and denominator of this number by 2. That means 2x upon 6. Here the LCM of 4 and 5 is 20. So multiply by 5 numerator and denominator both, and here we multiply numerator and denominator by 4. So this will be take LCM and send the denominator, and after this we will add or subtract. 3x minus 2x upon 6, 3x minus 2x upon 6 equal 5 plus 4 upon 20, 5 plus 4 upon 20. Now we add next number 3x minus 2x, that is x upon 6, 5 plus 4, 9 upon 20. That is x equal 9 into 6 upon 20. Now we see here 2 is common in numerator and denominator, so we cancel it. 2 1 get 2, 2 3 get 6, 9 3 get 27 upon 10. They ask to solve the linear equation, and this is the solution of this linear equation. They just ask to solve. If we want to check, we can also check this answer by putting the value of x in place of x. Now see the second linear equation, that is n upon 2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 equal 21. In this question also we find out the solution. That means we need to find out the value of the variable n. इसमें अपन को n की वैल्यू निकालना है. Here denominator are different. First we take LCM. LCM of 2, 4 and 6, that is 12. 12 is the smallest number which come in the multiple of 2, 4 and 6. So first we take LCM. LCM of 2, 4, 6, 12. So multiply. First one is 6. Second one is 3. And third one by 2. 5 2 are 10 और 6 2 are 12. पहली वाले नंबर को अपन ने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय 6. सेकंड वन इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय 3. एंड इन द लास्ट वन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ वी ऐड और सबट्रैक्ट. ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो 16 होगा. 16 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 7. या फिर पहले इसको माइनस कर दो तो प्लस का n बचेगा, और ऐड कर दोगे तो 7n का क्या बचेगा प्लस का. 7n अपॉन 12 इक्वल 21. अब यहां से अपन ट्रांसफर करें तो आएगा 21 into 12 अपॉन 7. रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा तो 7 minus 7, 7 3 जा 21. So the value of n is 12 3 जा 36. That is our solution of this linear equation. इस linear equation का जो आंसर हो गया है 36. Now see the third equation, that is x plus 7 minus 8x upon 3 equals 17 upon 6 minus 5x upon 2. Our first step is taking the variable value on LHS side, that is x minus 8x upon 3, और यहाँ पर जी आएगा RHS साइड से तो किसमें हो जाएगा पॉजिटिव में, साइन चेंज होगा. 5x upon 2 वैसे यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होगी और 7 जाएगा तो जी किसमें हो जाएगा नेगेटिव में. पॉजिटिव था तो
Now before adding or subtracting we need to take LCM because denominator are different. So LCM of 3 and 2 is 6. So multiply numerator and denominator of x by 6. Here 3, so multiply numerator and denominator by 2. So 3 2 is 6, 8 2 is 16. Here multiply by 3, so 5 3 is 15 upon 6 equal, यहाँ पर भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 6 ही आएगा. So 7 6 are 42 upon 6. 7 6 are 42 upon 6. Now we add or subtract 6x minus 16x plus 15x upon 6 equal 70 minus 42 upon 6. 70 minus 42 upon 6. अब यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे. 16 में से 15 माइनस हुआ, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा. कितना बचेगा, माइनस का x, x माइनस x करोगे सो वी गेट 5x अपॉन 6. और यहाँ पे अपना बचेगा माइनस का 25 अपॉन 6. नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है तो नेगेटिव की बचेगी 25. तो x इक्वल आएगा माइनस 25 अपॉन 6 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5. 6 जाएगा न्यूमरेटर में, 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे. 6 से 6 1 5 and 5 5 25. So the value of variable x is minus 5 and minus 5 is said to be the solution of this equation. इसको अपन चेक नहीं कर सकते हैं पुट करके. minus 5 plus 7 minus 8 5 40 upon 3. In place of x we take 5 17 upon 6 minus minus plus हो जाएगा 25 upon 2. 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा पॉजिटिव का, 3 2 जा होगा 6 माइनस 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 3 का होगा पॉजिटिव का होगा 40. और एलसीएम अपन ने ले लिया, यहाँ पे कितना आया 3 इक्वल में आ जाएगा 17 प्लस यहाँ पे एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 का 75 अपॉन 6. यहाँ पे ऐड करेंगे 46 अपॉन 3 और यहाँ पे ऐड करोगे 75 और 17 तो 92 अपॉन 6. 92 अपॉन 6 कैंसिल कर दोगे इसके लिए तो जी भी आ जाएगा 46 अपॉन 3 और जी भी आ जाएगा अपना 46 अपॉन 3. So this way we can also check our solution is correct or not, that is x equal minus 5 is correct or that value we get LHS equal RHS. Now see the fourth one, equation is x minus 5 upon 3, x minus 3 upon 5. इसको अपन यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ तो x minus 5, यहाँ 3 को अपन ट्रांसफर कर देंगे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में x minus 3. या तो अपन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको अपन सेपरेट करके भी क्या कर सकते हैं सॉल्व. x minus इस तरीके से भी अपन इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व. दोनों में जो वैल्यू आएगी x की वो क्या आएगी, सेम आएगी 5/3 minus 3/5. दोनों में सॉल्व कर सकते हैं अपन. यहाँ पे 5 को ट्रांसफर किया डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हुआ, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 5x minus 25 equal 3x minus 3 3 9. अंदर इसके ब्रैकेट के इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 से किया अंदर 5x का, फिर 5 का 5 में, 3 का x में, फिर 3 का 3 में. अब इसके बाद अपन कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू को सेपरेट करते हैं. 25 minus 9 3x था वेरिएबल का होगा यहाँ पे माइनस करेंगे 5x में से 3x तो वी गेट 2x और 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो वी गेट 16. सो वी गेट x equal 16/2 that is x equal 8. x equal कितना आया 8. इसको अपन चेक भी कर सकते हैं, 8 को रखोगे तो 8 minus 5 upon 3 8 minus 3/5 तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8 minus 5 that is 3
तो x इक्वल क्या आ जाएगा 8 पुट करोगे तो 1 इक्वल 1 दैट मींस x इक्वल 8 इज सेट टू बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. Now let's see the linear equation fifth, that is 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equal 2 upon 3 minus t. इसको भी अपन वैसे ही एक को अपन सेपरेट भी कर सकते हैं, that is 3t minus 2 upon 4 है होल के नीचे, तो अपन इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 2 upon 4. इस वे में भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. एलसीएम लेंगे इक्वल 2 upon 3 minus t. ऐसे अपन हर एक को सेपरेट करके अब यहाँ पर देखेंगे कि 3t upon 4 जिस सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 1 upon 2 minus 2 upon 3 minus 1 equal 2 upon 3 minus t. ऐसे भी कर सकते या डायरेक्ट को एलसीएम लेके भी अपन कर सकते ट्रांसफर करके. वैसे में भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा. यहां से अपन देखें तो कितना आया 3t upon 4 minus 2t upon 3 3t upon 4 minus 2t upon 3 और t आरएचएस साइड से एलएचएस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस t. माइनस t था तो किसमें हो जाएगा प्लस t. यहां माइनस 2 3 और j. इसको अपन ट्रांसफर करते हैं तो आ जाएगा अपना 2 upon 3 माइनस 1 upon 2 था तो यहाँ पे प्लस 1 upon 2 माइनस का 1 upon 2 प्लस का 1 upon 2 एंड प्लस 1. अपन ने सेपरेट कर लिया. नाउ वी टेक एलसीएम. एलसीएम आएगा 12 3 3 जा 90 upon 12. यहाँ पे 4 से होगा तो 4 2 जा 8 upon 12 प्लस 12t upon 12. Here we take LCM and we divide by the same number, so we get equivalence that number. Then 2 upon 3 plus 1 upon 2. यहाँ पे 3 और 2 का LCM आएगा 6. We multiply numerator and denominator by 2, so we get 4 upon 6. 3 upon 6 plus 6 upon 6. This way we can take LCM of the denominator. Now 90 minus 8t plus 12t upon 12 equal 4 3 6 upon 6. 2 upon 3 था 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 2 जा 6 2 2 जा 4 3 से मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 था 6 से किया 6 upon 6. अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा ओनली t और यहाँ पे प्लस 12 तो आ जाएगा 13t 13 upon 12 4 6 10 13 upon 6. यहाँ इसको अपन आरएचएस साइड में जाएगा वैसे तो अपन हो जाएगा दैट इज 12 upon 13 तो 13 से 13 कैंसिल 13 बन गया 13 6 बन गया 6 6 2 जा 12 so the answer we get t equal 2. तो अपन क्या मिलेगा t equal 2. इसको अपन दोनों को वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट एलसीएम लेके आ जाएगा 3t minus 2 minus 4 2t plus 3 और यहाँ पे जाएगा तो 12t एलसीएम आ जाएगा 12. एलएचएस साइड पे इसको ना तो पॉजिटिव t होगा और एलसीएम आ जाएगा 4 3 12. इस पे में भी अपन सॉल्व कर सकते हैं. इक्वल में अपना आएगा 2 upon 3. Now see question number 6. The given equation is m minus 1 upon 2 1 minus m minus 2 upon 3. यहाँ पे जो माइनस है वो दोनों पर आएगा यहाँ पर भी इन पर आएगा. तो पहले अपन एलएचएस साइड को हम वैल्यू को रखें which contain m that is m minus 1 upon 2. यहाँ पर एलएचएस साइड पे आएगा पॉजिटिव में चेंज होगा m minus 2 upon 3 equal 1. पिछले में हमने सेपरेट करके किया था लास्ट क्वेश्चन में. इसमें अपन कंबाइन लेके करते हैं तो यहाँ एलसीएम जो आएगा 3 और 2 का 6 आएगा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 6 बिकॉज़ डिनोमिनेटर इज 1. इसका 3 से होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सो वी गेट डिनोमिनेटर इज 6 प्लस
इसमें 2 से होगा m माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल टू इक्वल में क्या है अपना 1। अब यहां से अपन देखें 6m माइनस 3m 3 का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में इस नेगेटिव साइड का भी करेंगे तो -3 इनटू -1 तो क्या आ जाएगा +3। नाउ प्लस साइन इज देयर 2m एंड -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 अपॉन में क्या आएगा 6 इक्वल में क्या आएगा 1 अपॉन में आएगा 6 इक्वल में क्या है 1 -3 का हमने किया तो -3m -3 का वर्ग में किया माइनस माइनस प्लस +3 2m माइनस प्लस माइनस का 4। इसके बाद m टर्म जो है उसको अपन ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको करेंगे 6 में से 3 गया 3m प्लस 2m तो अपन का जो बचा 5m एंड प्लस 3 माइनस 4 तो यहां बचा माइनस का 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1। इसको अपन ने सिंपलीफाई किया सो वी गेट 5m माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 3 माइनस 4 तो माइनस का 1 बचा 6 में से 3 गया तो 3m प्लस 2m तो क्या आया 5m। यहां से अपन देखें 5m माइनस 1 6 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 6 का क्या करोगे 1 में मल्टीप्लाई सो यू गेट 6 5m इक्वल 6 प्लस 1 so you get 7m 5m equal 7 what you get 5m equal 7 and the value of m is 7 upon 5 that is the solution of the given equation m equal 7 upon 5 is the solution of the given equation. We can also check our solution by putting the value of m is 7 upon 5 we replace m by 7 upon 5 so we get LHS equal RHS. Now see the question number 7 इसके पहले ये सिंपलीफाई एंड सॉल्व वेरिएबल से सॉल्व करना है सिंपल इक्वेशन थी यहां पे अपन को सिंपलीफाई करना है आफ्टर दिस वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिंपलीफाई आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था यू वर स्टडीइंग इन योर प्रीवियस क्लास टू सिंपलीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पे यदि अपन देखें LHS और RHS साइड पे आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है जिसको हम पहले सिंपलीफाई करेंगे आफ्टर दिस यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। यहां पे अपन पहले 3 को मल्टीप्लाई करें सो वी गेट 3d माइनस 3 3 जा 9 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब इसके बाद जो सिंपलीफाई वाला नहीं हो गया अब इसको अपन सॉल्व करें तो 3d माइनस 10d इक्वल 9 यहां पे जाएगा पॉजिटिव होगा प्लस 5 माइनस किया तो क्या बचा अपना माइनस का 70 इक्वल 9 और 5 40 सो वी गेट t इक्वल 14 अपॉन माइनस 7 14 अपॉन माइनस 7 और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट t इक्वल माइनस 2 व्हाट वी गेट t इक्वल माइनस 2। इसको अपन चेक भी कर सकते हैं चेक करने के लिए अपन इसमें दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं क्वेश्चन वाली इक्वेशन में या फिर जो मैंने सिंपलीफाई किया था उसमें भी तो 3t दैट मींस इसमें रख के अपन चेक करें इसको दैट इज 3t 3 into -2 -9 इक्वल 10 into -2 प्लस 5 तो यहां से अपन को मिला -6 -9 -20 प्लस 5 -6 -9 -15 -20 plus 5 -15 so LHS equal to RHS that means t equal -2 is the solution of the given equation. तो पहले simplify after this find out the solution. Let's see the question number 8. The given equation is 15 bracket y minus 4 minus 2 into bracket y minus 9 plus 5 और bracket y plus 6 equal 0. इसमें भी पहले अपन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को LHS साइड पे जो दिया है इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे आफ्टर दिस वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन दैट मींस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। तो यहां पहले अपन 15 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में तो 15 into 5 दैट मींस 15y and 15 into 4 दैट इज 60 2y
नेगेटिव था तो नेगेटिव आया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 2 इंटू 9 18 होगा, 5 इंटू 5 करोगे तो 5 आएगा, 6 इंटू 5 करोगे तो 30 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे जो y वाली टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 माइनस 2, तो माइनस करने पर 13y और प्लस 5, 15 और 5 का तो पहले 20 में से 2 गया तो 18y माइनस 60 प्लस 30 प्लस 18, तो 60 में से 30 गया तो माइनस का 30 बचा और प्लस का 18 है तो यहाँ से अपना बचेगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। माइनस 60 प्लस 30, माइनस का 30 प्लस का 18 है तो कितना बचेगा माइनस का 12, माइनस का 12 यहाँ पे अपन देखें तो 15 और 5 20 में से 2 गया तो 18y इक्वल टू 12। 0 प्लस 12 करोगे तो क्या मिलेगा, 0 में किसी भी नंबर का ऐड करें तो क्या मिलेगा, वही नंबर इटसेल्फ। तो यहां से अपन ने देखा कि 18y इक्वल 12 मिला, सो वी गेट y इक्वल 12 अपॉन 18 और जो कॉमन फैक्टर है 12 और 18 का वो क्या है 6, सो कैंसिल बोथ द नंबर बाय 6, सो वी गेट 2 अपॉन 3, व्हाट वी गेट 2 upon 3 and it is said to be the solution of the given equation. 2 upon 3 is said to be the solution of the given equation. If we replace y by 2 upon 3, so we get LHS equal RHS, that means we get 0 by putting y equal 2 upon 3 in this. यदि अपन पुट करके देखें तो 15 into 2 upon 3, 15 into 2 upon 3 या फिर अपन इसमें भी पुट कर सकते हैं 18y था, इसमें पुट कर दो 18y, that means 18 into 2 upon 3 minus 12, 6 2 जा 12 minus 12, so we get 0। LHS लेके चले थे अपन और RHS पर बोला, that means LHS equal RHS। Now let's see the second last question of the exercise. The given equation is 3 into bracket 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 equal 4 into 8z minus 19 minus 17. In this question we find out the value of the variable z. So first we simplify by multiply 3 into bracket 5 3 are 15, z 7 3 are 21, negative था negative, minus 2.2 होगा 9 2 जा 18 minus था तो minus आएगा, minus minus plus होगा 11 2 जा 22, 4 8 जा 32 minus 13 4 जा 52 minus का 70। अब और सिंपलीफाई होगा तो सॉल्व करेंगे 18 और 15 माइनस का कितना बचेगा 3z minus 21 plus 22 तो प्लस का बचेगा 1 इक्वल 32z minus 52 और minus 70 बोथ आर नेगेटिव तो दोनों क्या होंगे ऐड, तो जे अपना आ जाएगा ऐड होंगे 69 माइनस LHS साइड पे अपन वेरिएबल टर्म को रखें तो -3 माइनस 32 इक्वल -69 माइनस 1 होगा, यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा 32 और 3 35, 69 और 1 दोनों नेगेटिव है, दोनों ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। यहाँ पर देखें तो z इक्वल -70 अपॉन -95, नेगेटिव साइन भी कैंसिल होंगे और 35 पूरा 70 आएगा तो z इक्वल क्या आएगा आपका प्लस 30, नेगेटिव साइन भी कैंसिल होंगे और 35 पूरा 70, सो वी गेट z इक्वल टू, इसको अपन चेक भी कर सकते हैं बाय पुटिंग या बाय रिप्लेसिंग z बाय 2, z को रिप्लेस करके 2 से अपन चेक कर सकते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 1 यहां से भी चेक कर सकते हैं अपन तो क्या आएगा -6 प्लस 1, यहां पे यदि अपन देखें तो 32 2 जा 64 माइनस का 69 तो -5 इक्वल -5, दैट मींस LHS equal RHS, our value of variable z equal to is correct solution for the given linear equation. Let's see the last question of the exercise, that is 0.25. The given equation is 0.25 multiplied bracket 4f minus 3 equal 0.05 bracket 10f minus 9.
f 25 3 का होता 75 पॉइंट 2 डिजिट के पहले तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आया इक्वल 05 10 तो 5 का 10 में करोगे कितना आएगा 50 पॉइंट 2 डिजिट के पहले है तो यहां पर भी पॉइंट 2 डिजिट के पहले आएगा 9 5 जा 45 पॉइंट 2 डिजिट के पहले है तो 2 डिजिट के पहले क्या आ गया पॉइंट 9 5 जा 45 यदि आपको पॉइंट नहीं आ रहा तो इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या बनेगा 1 और 2 डिजिट है 100 तो इस टाइप से 1/4 है ऐसे भी अपन कर सकते हैं या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो 0.25 है तो हटा नीचे 100 आ रहा है यहां पे 0.05 है पॉइंट हटा नीचे 100 आ रहा है और दोनों तरफ का 100 क्या हो जाएगा कैंसिल दोनों तरफ का 100 क्या होगा कैंसिल तो यहां पे अपना बचा f अकेला माइनस 0.5f इक्वल टू 0.75 पॉजिटिव होगा माइनस 0.45 f में से 0.5 गया जी कितना था 1f और 0.5 गया तो क्या बचा ओनली 0.5f कितना बचा 0.5f और यहां से यदि अपन देखें तो कितना बचेगा अपना यहां से 0.5 में से 5 3 कितना बचेगा 3 तो यहां पर क्या आया f इक्वल 0.30 अपॉन 0.5 और इसको डिवाइड करेंगे सो वी गेट 0.6 इसको यदि अपन दूसरे तरीके से देखें 0.25 4f माइनस 3 इक्वल 0.05 10f माइनस 9 तो यहां पे पॉइंट हटा नीचे क्या बनेगा 100 पॉइंट हटा 100 कैंसिल कर दिया दोनों साइड मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर आके तो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी अब इस 25 का 4 में करोगे तो 100 है माइनस 75 50f माइनस 45 यहां पे रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा सब्ट्रैक्ट किया सो वी गेट 50f इक्वल 75 में से 45 गया 30 सो f इक्वल 30 अपॉन 50 0 से 0 कैंसिल कर दिया when we divided by 3 by 5 when we divided 3 by 5 पॉइंट लगा 0 बनेगा 6 कितना आया 0.6 रख के इसको अपन चेक भी कर सकते हैं सो वी गेट LHS इक्वल RHS यहां पे अपन कहीं पे भी इसको रख के क्या कर सकते हैं चेक यहां पे आप तो 0.6 दैट मींस 0.5 मल्टीप्लाई 0.6 इक्वल 0.30 तो 6 5 का 90 एक डिजिट यहां है पॉइंट के बाद एक यहां तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा सो वी गेट